Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. I hope maximum of you are now grown up and used to do shopping and all for your home. Okay, sometime it may be that you are you used to go to the market with your parents. Okay, now let's talk about one of the most important topic of our class, which help you or which help the businessman, especially the people who are dealing with the purchasing something and selling the particular thing with the higher values, or it may be sometime he need to sell with the less value also. So suppose one of you are purchasing a particular item, कुछ भी चीज़ हो सकता है, it may be a mobile phone, it may be a television, it may be anything from the market. So suppose you are if we are taking an example of mobile phone only, suppose you have purchased a mobile phone with 15,000 rupees. Right? So this is the price at which you have purchased a cell phone or mobile phone. Now if suppose you sell this mobile phone to one of your friends at the rate of 18,000 for that particular phone. So here what happens is whatever the price at which you have purchased, you have sell with the higher value, right? It may be like that also, कि this is the price at which you have purchased, and it may be suppose instead of 18,000 you have sell that after using some days you have sell particular phone at the rate of 13,000. आपने 13,000 में सेल किया, ये भी हो सकता है, ठीक है. So now what is the difference between these two? Here we have sell the particular phone with the higher value than the value of the price of the original price which we have purchased in, and here we have sell with the less value. Okay. So this is all about which we are going to learn today. The chapter number is 11, profit and loss. Okay. So first of all, because this is the new chapter, let's discuss what the profit and what the loss means. So profit is nothing but this only, and loss is nothing this only. I mean, first before discussing profit and loss, let's talk about what these terms are called. The price at which you purchase something, that is called the cost price. तो this one here, इसको हम लोग बोलेंगे cost price. In short, this is called CP. Or the price at which you are selling something, that is called selling price, or in short SP. So this is here selling price or SP. So here cost price or CP is this much, and selling price SP is first time suppose you have purchased two phone, one is purchased this much and sell this much, another is purchased this much and sell this much. So in both the cases you can say, in first cases the selling price is greater than the cost price, and in second case the selling price is less than the cost price. So this is the basic concept which you have to understood to know the profit and loss. Obviously जब हम आपको बोलेंगे
मान लो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ आप कम दाम में खरीद के उसको ज़्यादा दाम में बेच देते हो तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो जिस रेट से आप बेच रहे हो वो कम होता है तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही दो कॉन्सेप्ट हम लोग का यूज होगा टू फाइंड आउट फर्स्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। So first let us find out the profit. So what will be the profit? How we can find the profit is just in that case, in the case of selling price is greater than cost price and then only the profit will happen. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहेगा दो चीज़ हमें देखना है, कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो लेस देन सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो मैंने सामान परचेज किया है उससे ज़्यादा प्राइस में अगर हम उस पर्टिकुलर आइटम उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं सेल करता हूँ तो ही मेरा बेनिफिट होगा, तो ही मेरा लाभ होगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे वही देखना है कि क्या कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस केस में हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम अगर निकालेंगे कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो हमें पता चल गया बट हाउ मच, देन जस्ट वी विल सब्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो विल डू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप SP माइनस CP भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस जो है 18,000 है, 18,000 माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस है 15,000। सो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 5, 6, 7, 8 तो 3,000 रुपीज़ आएगा इसका आंसर, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। तो वेरी इजीली जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले ये देखना है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि नहीं, और जो सेलिंग प्राइस है वो लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस जो है उससे माइनस कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वही हमारा प्रॉफिट है। 100 रुपये में एक चॉकलेट खरीद के अगर 120 रुपये में किसी को बेचते हो तो 20 रुपया 20 रुपीज़ इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज़ द प्रॉफिट अमाउंट, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा वैल्यू होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग जस्ट द एक्स्ट्रा वैल्यू और द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज कमिंग दैट इज द प्रॉफिट और लेस अमाउंट विच इज कमिंग दैट इज द लॉस, दैट्स ऑल, राइट। So in the same way, in this case we have learned about the profit, we can find out the loss also in the same way. So in case of loss what you have to observe is, तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है कि we'll see the cost price and selling price। हम लोग cost price और सेलिंग प्राइस देखेंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखने के बाद ये देखेंगे क्या कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है मतलब ज़्यादा है इन दिस केस, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है तो सेलिंग प्राइस हमारे कम है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से हमारा लॉस हो जाएगा, और लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। मतलब प्रॉफिट का तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो रहा था, लेकिन लॉस का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लॉस का हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो आप इसको CP माइनस SP भी लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस हमारा 15,000 था, माइनस करेंगे 13,000, सो आपको जो मिलेगा 2,000 मिलेगा।
सो 2000 विल बी द लॉस। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चेक करना है। अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा से कम को माइनस कर देंगे। और अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हम लोग जो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट द फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन द प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस एंड लॉस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। मान लो आपने एक चॉकलेट परचेज किया जिसका प्राइस 80 रुपीज़ था, अब आपने उसको 50 या 60 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस था, जो प्राइस में आपने परचेज किया था, वो ज़्यादा था। सो दैट इज़ 80 रुपीज़। एंड आपने जो सेल किया वो 50 रुपीज़ है, जो कि लेस है, 80 से लेस है। ठीक है। सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच लॉस, जस्ट यू सब्ट्रैक्ट 80 minus 50, that's all. So you will get 30 rupees. 30 rupees will be your loss. So it's very simple. If you relate this with our daily life example, you will see lots of examples are there which will fit here. So this is how you can find out the profit and loss. One question is here in exercise 11.1. First question, it is asking when the cost price is this much and selling price is this much, then the profit gain is. So very easily यहाँ पे तो ये भी दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट होगा, और ये भी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो लेट अस सॉल्व दिस वेरी इजीली, जस्ट सब्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स। सो हियर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, और आप यहाँ पे CP भी लिख सकते हो शॉर्ट में, CP इज इक्वल टू रुपीज 24,100 एंड शेलिंग प्राइस दैट इज SP इज इक्वल टू रुपीज 25,000. So you have to find the profit gain. So therefore profit is equal to SP minus CP होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि CP is less than SP, therefore profit will be happen, therefore that is equal to profit. So now we will put the formula of profit. We know SP minus CP. Here SP is, we have rupees 25,000 minus CP we have rupees 24,100. 24,100. So if you subtract this, you will find 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0. Show 900 rupees. Show rupees 900 will be the rupees 900 will be the profit. Okay. So this is how very simply whenever any cost price and selling price given, it may be any value instead of this, very easily you can find out the profit and loss. Now one more type of question it may ask, which is suppose cost price is given and profit or loss is given, then how can we find out the selling price? So let's see how we can find out that type of question. Now the topic is how to find out the selling price or cost price also may be sometime when the rest things are given. So यहाँ पे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि I am saying कि I have purchased this marker. I have purchased this marker at the rate of 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ में मैंने ये मार्कर परचेज किया है
और इसको फिर मैंने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट पे बेच दिया है, मतलब हमने 10 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है इसको बेचने के बाद। सो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, इसका मतलब मैंने कितना में ये मार्कर बेचा है, डेफिनेटली हमने इसको 40 रुपीज़ में बेचा है, तभी तो हमारे पास जो है 10 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है। So now how we have find out, that is the most important thing. So यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट है, ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग ने अभी पढ़ा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही था। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था, ये प्रॉफिट का था। अभी हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था और मेरा जो था और प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था ₹10 और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 30। अब इसका हेल्प से हमने ये दोनों को ऐड करके 40 रुपीज़ निकाला। तो इसी से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है। आप अगर ये CP को इधर लेके आ जाओगे, या तो दोनों साइड अगर CP आप ऐड करोगे तो CP इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर CP रह जाएगा, या तो सिंपल रूल्स जो आप लोग जानते हो, इसको इधर लेके आ जाओ तो SP हो जाएगा प्रॉफिट प्लस CP। तो SP का हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हेयर। जो भी हम लोग का कॉस्ट प्राइस था उसको प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आएगा। बहुत ही इजी एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये डस्टर मैंने 20 रुपीज़ में खरीदा, अब हमने इसको जो है 20 रुपीज़ और बेनिफिट के साथ मैंने बेच दिया। तो 20 रुपीज़ में मैंने परचेज किया था और फिर 20 रुपीज़ का बेनिफिट के साथ मैंने बेचा, मतलब 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 20 और प्रॉफिट 20, तो 20 + 20 इज 40 रुपीज़, राइट। दैट मीन्स इसका सेलिंग प्राइस जो है हमें 40 रुपीज़ रखना पड़ेगा, तभी हमें 20 रुपीज़ का बेनिफिट होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फाइंडिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये है। अभी मान लो हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, ये वाइट बोर्ड है और मैं ये वाइट बोर्ड जो है, मान लो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने मान लो ये बोर्ड को बेचा है एट द रेट ऑफ द सेलिंग प्राइस आई एम टेलिंग। सो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस वाइट बोर्ड इज सपोज 5,000 रुपीज़। 5,000 में मैंने ये सेल किया है, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट जो है सेल करने के बाद मेरा प्रॉफिट जो हुआ है मान लेते हैं 1,000 रुपीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सो ये वेरी इजी है। यहाँ पे जैसे आपका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज सी जस्ट दिस प्रॉफिट आई विल टेक दिस साइड, ये प्रॉफिट को इस साइड लेके आ जाएंगे और एसपी को इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो साइन इसका आप चेंज करोगे तो फिर सेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होकर फिर प्लस ही बचेगा। तो सिंपली इसको इधर करके लेके आओगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो, हमें तो सेलिंग प्राइस तो हमने देख लिया, अभी हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस, और ये प्रॉफिट को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो एसपी माइनस
प्रॉफिट माइनस एसपी होगा, सॉरी, प्रॉफिट माइनस, नो सॉरी, सो एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, क्योंकि एसपी जो है ये है और प्रॉफिट हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया बहुत ही इजी, क्योंकि ये देखो ये बोर्ड मैंने 5000 में बेच दिया है और मेरा जो अर्निंग हुआ है इसको बेच के वो 1000 रुपीज हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली 4000 में मैंने परचेज किया है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, जस्ट कंसेप्ट आपको ये समझना है कि हाउ द फॉर्मूला केम। तो यहाँ पे सीपी जो था मैंने इधर लेके आ गया, प्रॉफिट को इधर लेके चल गया, तो हमारा बाकी सब एज इट इज है। तो सीपी का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला याद नहीं करने हैं, समझने हैं, और एक फॉर्मूला अगर समझ जाओगे उससे बाकी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से। सेलिंग प्राइस हमारे पास 5000 है, तो ये निकल जाएगा रुपीज 5000 माइनस रुपीज 1000। सो यहाँ पे निकल के आएगा 4000। सो 4000 विल बी द कॉस्ट प्राइस। 4000 जो था वो कॉस्ट प्राइस था जिसमें हमने ये प्रॉफिट 1000 रुपीज कमाया है और सेलिंग प्राइस 5000 है। तो इस तरह का मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस जो है आपका इस एक्सरसाइज में आपको मिलेगा और आप अपने से इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे इसी तरह से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के केस में हम लोग ने निकाला, अब लॉस के केस में भी वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। So I hope now you can do the exercise 11.1 by yourself. The rest of all topic we will discuss in our next class. So your homework will be exercise 11.1. You try all the questions to do by yourself. If you have any doubts, we'll discuss during the live classes also, or we'll discuss in our next class. Thank you. Have a good time. Take care and bye-bye.